الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي يا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بدأتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء سلوى. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بدري في الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويقول التحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور يسري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء سلوى. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله
فقال النبي بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا وفازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على खैद क्या क़यामत है नहीं को मददगार क्या क़यामत है दस्तो पाए मुबारक में भारी जंजीरे दस्तो पाए मुबारक में भारी जंजीरे और सिपतों से गराबा क्या क़यामत है पड़े हैं लाश अज़ीज़ों के गर्म रेती पर पड़े हैं लाश अज़ीज़ों के गर्म रेती पर है क़ैदवारी से गमख़ार क्या क़यामत है बिठा के ऊँटों पर से दानियों को बेपर्दा बिठा ऊँटों पर से दानियों को बेपर्दा फिराए कूचो बाज़ार क्या क़यामत है बंदे हैं हाथ रसन में है गोद में बच्चे बंदे हैं हाथ
की रफ्तार ये क्या क़यामत है। वो तेज ऊँटों की रफ्तार ये क्या क़यामत है। सकीना कैद में बाबा को जब भी रोती है। सकीना कैद में बाबा को जब भी रोती है। लई घुरत हर बार क़यामत है। लई घुरक हर बार ये क्या क़यामत है। अहले बैत गिरफ्तार एक रस्सी में। अहले बैत गिरफ्तार एक रस्सी में। सजा है शाम का बाज़ार ये क्या क़यामत है। सजा है शाम का बाज़ार ये क्या क़यामत है। यजीद बैठा है तख्ते खिलाफ मज़हर। यजीद बैठा है तख्ते खिलाफ मज़हर। बीमार खड़े हैं ये क्या क़यामत है। क़ैद आबिद बीमार ये क्या क़यामत है। बंदे हैं हाथ रसन में है गोद में बच्चे। वो तेज ऊँटों की रफ्तार ये क्या क़यामत है। अहले बैत गिरफ्तार एक रस्सी में। सजा है शाम का दरबार ये क्या क़यामत है। शहीद से कोई शमशीर का मज़ा पूछे। मरीज से कोई अक्सीर का मज़ा पूछे। असीर से कोई जंजीर का मज़ा पूछे। यतीर से कोई जुगेगा मज़ा पूछे। हर एक पर गुज़रा
बेड़िया हर कदम पागिर पड़ना मुझो सितम का हरम का शोर बुका वो जिस्म लागर आबिद वो दो को दुरा सिवाय शुक्र खुदा कुछ न कहते थे संचार के कुंबे को बलवे मिले गए आदा जलाया कैमे नामों से सैयदे वाला फिर आके बलवे में जिंदा में कैद कर डाला तमाशा देखने सब शाम आते थे असीर बला पिदर को देखे कफन खाक में रखा लाशा लिपट के कब्र से चिल्लायों के बाबा वतन को जाता लो आखिर मेरा मुजरा वतन से आया किस शान से वतन से ले गए फिर करके भानिश गरीबे शाम जो पहुँचे वो दोनों सफर में बेकस से छूट गए सचार जंगल में सैयदे वाला मदीने में हुआ दाखिल बेकसोतना वलीद शाम के हाकिम ने जर भिजवाया वो सबके खाते याबत की जा फलक बहुरो मलाकश को ऐलान लगे आलंद पद गए सजा जो खाया तो सजा पर गए सजा नबी की आल को बेआस कर गए सजा
सजा सरपना बीते मरका से मुस्तफा निकले अरे जा वो बेकसों का सहारा गुजर गया लोगों मदीना लुट गया या मोर सफाद कहीं
अजीब हाल से के घर गए हैं हुसैन किसी ने मारा है पत्थर किसी ने मारा है पत्थर पहले के क्या के करते तिलावत बहन के साथ रहा खजा के बाद भी भाई बहन के साथ रहा जिधर गई ज़ैनब मौला गरीब अल्लाह के हबीब का यारो बेब एकदम मैदान निकलता है अब
में लाए के असर हुआ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والنبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات محمد. अज़ीज़ान गिरामी, इसमें कोई शक नहीं कि जितनी मखसूस तारीफें हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस महबूब हकीकी के लिए है जो आलमीन का पालने वाला है और कभी ना खत्म होने वाले दुरूद व सलाम उन अनवार और मुक़द्दस हस्तियों के लिए है कि जिनकी मोहब्बत में आलमीन को खल्क़ किया गया है। बराए तमहीद मुख्तसर तरीन गुफ्तगू के लिए बिल्कुल इख्तिसार के साथ, क्योंकि मखसूस अय्याम है, कसरत है, पेश नज़र हर बात है, सआदत और तमहीद के लिए एक शौरा आफाक आयत जिसकी तिलावत मैंने की है। खुदावंद आलम ऐलान करता है हमारी खिलकत का मकसद। आज दुनिया में अफसोस की बात यह है कि कुरान मजीद पढ़ने वाले हजारों लोग हैं, उसके बावजूद लोग अपनी खिलकत के मकसद ही से आगाह नहीं है। इसी बात नहीं है कि हमें खल्क़ क्यों किया गया। जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जिंदगियां गुजार रहे हैं, तौहीद और रिसालत का भी इकरार है, मगर ये कि अपनी खिलकत के मकसद से इंसान अनजान है। क्यों अनजान है? एक ही सबब है, और सबब ये है कि तासुब, बोग्स, जाहिलियत
ये तमाम चीजों की बिना पर या हमसे दूरी जो रखाई गई है, इसका नतीजा मकतबे अहले बैत से लोग जुदा हो गए, उलूमे आले मोहम्मद से लोग जुदा हो गए। यही सबब है कि लोग अपनी खिलकत के मकसद ही से अनजान बैठे हैं। बल्कि खुदावंद आलम सिर्फ हमारी नहीं, हमारे साथ एक और जिन्स है जिसको मिला के कह रहा है दोनों की खिलकत का मकसद। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस, हमने खल्क़ ही नहीं किया जिन्नों और इंसानों को इल्ला लियअबुदून, सिवाय इसके कि वो इबादत करें। तो पता चला जिन्नों और इंसानों की खिलकत का मकसद है इबादत। जिन्नों की बात रहने दीजिए, क्योंकि अभी हमसे मतलब नहीं है, हम अपनी बात करते हैं। हमारी खिलकत का मकसद है इबादत। बात तय हो गई, मकसद खिलकत बन गया इबादत। अब जैसे ही लफ्ज़ इबादत कहा, ज़हनों में क्या आता है? जी, ज़हनों में सबसे पहली जो चीज आती है वो है नमाज। लफ्ज़ इबादत इसको लोगों ने महदूद कर लिया। नमाज अजीम तरीन इबादत है, मगर इबादत का मतलब सिर्फ नमाज नहीं है। इबादत का मतलब सिर्फ नमाज नहीं है जाने में। वरना हम देख रहे हैं कि कई नमाज पढ़ने वाले हैं, नमाज भी चल रही है, मक्कारी भी चल रही है, नमाज भी चल रही है, सियासत भी चल रही है, नमाज भी चल रही है, धोखेबाजियां भी चल रही है, नमाज भी चल रही है, फरेब भी चल रहा है सब कुछ। मगर अजीज़ाने गिरामी, तालीमात अहले बैत से दूर है। तो नमाज भी है, मुसल्ले पे है, मगर उस अंदाज में नहीं है, उस कैफियत में नहीं है जैसे खुदा चाहता है। सुभान अल्लाह, जैसे खुदा चाहता है। गैरों की बात छोड़िए, कुछ अपने। अल्लाह चाहता है कि तुम मुसल्ले पे आओ इबादत के लिए, तो कायदे से आओ, अदब से आओ, इखलास के साथ आओ, खुलूस के साथ आओ, और जो शराइत उन पर पाबंद कर दिए गए हैं उन पाबंदियों के साथ आओ। है कि नहीं? ख्याल कहीं और है, बदन मुसल्ले पे। अच्छा, आ भी गए मुसल्ले पे, खुदा की बारगाह में खड़े हैं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, ये अजीब मजाक है। क्लीन शेव, खुदा की बारगाह मुसल्ले पे ठहरे हैं। अभी जिस चीज को शरीयत मोहम्मदी ने हराम किया, वो हराम करते हुए मुसल्ले पे ठहरे हैं। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं और करने पे मालूम। अल्लाह की बारगाह में ठहरे हैं, जिस चीज से अल्लाह ने हराम करार दे दिया, मना कर दिया, वो करके ठहरे। बातें बड़ी बड़ी, पूछिए मत। अल्लाह अकबर। ऐसी बात है कि भाई इस्लाम ही नहीं पे उतरा है, ऐसे भी लोग हैं, बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि भाई पूरा इस्लाम ही नहीं पे उतरा, मगर चेहरे से अल्लाह अकबर, इस्लाम का नामो निशान नहीं है चेहरे पे। ऐसे भी लोग हैं। तो खिलकत का मकसद इबादत है, और इबादत सिर्फ नमाज को नहीं कहते, याद रखिए। रोजे अव्वल इबादत का खुलासा हो रहा है। मैंने कहा इख्तिसार तो इख्तिसार इंशाअल्लाह। रोजे अव्वल खुलासा इबादत हो रहा है। अल्लाह ने कहा सबको सजदा करो आदम को, सबने किया, शैतान ने नहीं किया। क्या हो गया? लानत का मुस्तहक, हुक्म रब का मुनकिर हुआ, लानत का मुस्तहक, दरबार खुदा से निकाल दिया गया, मरदूद कह दिया खुदा ने, कयामत तक लानत का मुस्तहक। पूरी दुनिया से एक सवाल पूछे कि क्या इब्लीस ने
अल्लाह के सजदे का इनकार किया था? क्या कहने? पूरी दुनिया से ये सवाल पूछिए, क्या इब्लीस ने ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार किया था? नहीं। क्या इब्लीस ने ये कहा था कि खुदा मैं तेरी इबादत नहीं करूंगा? वो तो यही कह रहा था ना कि मैं तुझे तो सजदा करता हूं, क्या कहने? आदम को नहीं करूंगा। तेरी तो इबादत कर रहा हूं ना, वाह। तेरी इबादत से इनकार थोड़ी है। याद रखिए, इब्लीस ने अल्लाह की इबादत, अल्लाह के सजदे से इनकार नहीं किया, वाह। अल्लाह की तौहीद से इनकार नहीं किया, मुशरिक नहीं हुआ। आज भी इब्लीस मुशरिक नहीं है। क्या कहने? आज भी मुशरिक नहीं है। इब्लीस नुमा कई लोग हैं जो मुशरिक नहीं है। इब्लीस मुशरिक कोई साबित ही नहीं कर सकता कि इब्लीस मुशरिक था। नहीं, इब्लीस ने शिर्क ही नहीं किया। अरे वाह वाह वाह। जो शिर्क जहनों में बैठा हुआ है वो शिर्क इब्लीस ने किया ही नहीं। उसने अल्लाह की तौहीद का इनकार ही नहीं किया। आदम के सजदे से इनकार किया ये कहकर कि भाई मैं आग से बना हुआ, वो मिट्टी का बना हुआ है, ये मेरी शान के खिलाफ है कि मैं उसके सामने झुकूं। तेरे सामने तो झुक रहा हूं ना। फिर भी अल्लाह कह रहे हैं निकल जा बारगाह से मेरी, लानत का मुस्तहिक हो गया। तो ये अजीब मसला है। अल्लाह का इनकार नहीं हो रहा है, तौहीद का इनकार नहीं हो रहा है, अल्लाह के सजदे का इनकार नहीं हो रहा है, फिर भी बारगाह खुदा से निकाला जा रहा है। क्यों? लोग कहते हैं सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। ना हम किसी के सामने झुकेंगे, ना हम किसी के मांगेंगे, ना हम किसी के सामने हाथ फैलाएंगे। जो देने वाला है अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। इब्लीस भी तो ये कह रहा था सिर्फ अल्लाह। फर्क वही क्या होगा देखिएगा। फिर भी लानत का मुस्तहिक क्यों हुआ? तो रोजे अव्वल अल्लाह ऐलान कर रहा है, रोजे अव्वल ही खुलासा लफ्ज़ इबादत बता रहा है अल्लाह कि जान लो इबादत उसे नहीं कहते जो तुम तुम्हारी मर्जी से करो। जो तुम तुम्हारी मर्जी से करो। इबादत उसे कहते हैं जिसमें मेरा मंशा, मेरी मर्जी शामिल हो। सिर्फ उसकी बारगाह में खड़े होकर उसको सजदा कर लेना इबादत नहीं होता, बल्कि उसने जिन जिन की ताजीम लाजिम रख दी। क्या कहने? सुभान अल्लाह। उसने जिस जिस का एहतराम लाजिम रख दिया, उसने जिस जिस की मोहब्बत और मवद्दत लाजिम रख दी। क्या कहने? सुभान अल्लाह। वो तमाम उमूर अंजाम देंगे तब इबादत इबादत होगी, वरना इबादत इबादत नहीं होगी। इबादत का मकसद है, खिलकत का मकसद इबादत है। अब मैं और इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, इतना अर्ज करूं, खिलकत का मकसद है भाई आप मजलिस के लिए आए हैं अपने घर से निकल के, मकसद था मजलिस के लिए आए। अब आप रास्ते से कहीं और दूसरा रास्ता अगर इख्तियार कर ले तो आप अपने मकसद से दूर हो जाएंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो जैसे ही आपने स्टार्ट लिया, अब लाजिम हो गया ना कि आप अपने मकसद पे गामजन रहे। लाजिम हो गया ना मंजिल पे पहुंचने तक। अब अल्लाह कह रहा है हमने खल्क नहीं किया सिवाय इसके कि इबादत करो। अब आप खल्क हुए, यानी पहली सांस ली खल्क में आ गए, बड़े होके खल्क में नहीं आए, पहली सांस ली खल्क में आ गए, आखिरी सांस तक आप खल्क में हैं, है कि नहीं है? तो जब पहली सांस ली वहीं से खिलकत के मकसद का आगाज होना लाजमी है। आपने पहली सांस ली, खल्क में आ गया, खिलकत हो गई आप। अब आपकी मकसद शुरू हो जाना चाहिए। मकसद क्या है जी? इबादत शुरू हो जाना चाहिए ना, और आखिरी सांस तक, है कि नहीं है? क्या बात है? खुदा की कसम, इस आयत की तफसीर, इस आयत की तशरीह हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता। क्या कहने? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हकीकत में कोई नहीं कर सकता। वाह। क्यों? इसीलिए कि तमाम शरीयत में
चाहे हमारी पास की हो कहीं और की हो बरादरान की। सबसे पहली इबादत है नमाज। कब वाजिब हो रही है? सिने बुलूग पे पहुंचने के बाद। क्या कहने? रोजा, सिवात, तमाम वाजिबात हाँ वाजिब हुए, नमाज वाजिब हुई है। अधिकार ने गिरा पैदा होके खिलकत में आके बालिग होने तक इतने साल अपने मकसद से दूर। क्या बात, क्या बात। है अपने मकसद से दूर। अच्छा चलिए, ज़ईफ हो गए, बूढ़े हो गए, बिस्तर पे पड़ गए, आखिरी अय्याम आ गए, मकसद से दूर। अब ना नमाज पढ़ सक रहे हैं, ना रोजा रख सक रहे हैं, कुछ नहीं। अब आखिरी सांस तक मकसद से दूर, यानी जिंदगी के आगाज में भी मकसद से दूर, इख्तिताम में भी मकसद से दूर। तो फिर मकसद पूरा कैसे हो? खिलकत का मकसद इबादत है ना। अरे वाह वाह वाह, तवज्जो है? सुभान अल्लाह। खिलकत का मकसद इबादत है ना। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब एक ऐसी इबादत होनी चाहिए जो तमाम इबादतों की जान बन क्या जाए। कहने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो इबादत हो, और फिर ऐसी हो जो तमाम इबादतों की जान भी हो और जो तमाम इबादतों की मकबूलियत का सबब भी हो। क्या कहने? अरे वाह वाह वाह। अब वो इबादत हो तो फिर दीगर इबादतें कबूल हो। क्या कहने? वो इबादत साथ हो तो नमाज भी कबूल हो, वो इबादत साथ हो तो रोजा भी कबूल हो, वो इबादत साथ हो तो हज भी कबूल हो, वो इबादत साथ हो तो खैरात भी कबूल हो, वो इबादत साथ हो तो सदका भी कबूल हो, वो इबादत साथ हो तो नेकियां भी कबूल हो, वो इबादत साथ हो तो सजदे भी कबूल हो। अगर वो इबादत नहीं है तो फिर कुछ भी कबूल ना हो, फिर कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो। अगर वो नहीं तो फिर कुछ नहीं, वो नहीं तो फिर कुछ नहीं। तो ये जुमला तो एक ही जगह पे सुनाई दिया ना। क्या कहने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ही मकाम पे शरीयत को सुनाई दिया ना। तारीख इस्लाम में गदीर के मैदान में अल्लाह कह रहा है, ए मोहम्मद ये नहीं तो कुछ नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं पहुंचाया तो फिर कुछ नहीं पहुंचाया। मालूम हुआ ये नहीं है तो फिर कुछ बचा ही नहीं है शरीयत में। बेशक। अब खिलकत का मकसद इबादत। अच्छा चलिए, रसूलुल्लाह ने कह दिया अली का जिक्र इबादत। चल सहारा मिल गया, खिलकत के मकसद में रह सकते हैं। जिक्र करते 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 फरमान चढ़े आखिरी सांस तक, ये साथ रहा मामला। मगर पैदा होते ही थोड़ी जिक्र होगा। पैदा हुए अभी तो गोयाई के लिए 2 साल बाकी है। 2 साल में बोलना सीखता है बच्चा, जिक्र भी नहीं कर सकता जब तक। फिर नहीं, खिलकत का मकसद तो पहली सांस से शुरू हो जाना चाहिए और आखिरी सांस तक होना चाहिए। खुदा की कसम रसूलुल्लाह ने बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमला कहकर के सिर्फ अली का जिक्र नहीं, अली की मोहब्बत में ली जाने वाली सांस भी इबादत में शुमार है। अब बताइए खिलकत का मकसद। हमारे यहाँ जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, अरे वाह, सबसे पहले कान में अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह, क्या कहने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र इबादत शुरू। बेशक। सांस पहली अली में इबादत के साथ, क्या कहने? आखिरी सांस तक इबादत। और इबादतों की मेराज होती है ना, जैसे नमाज की मेराज है सजदा। नमाज की मेराज सजदा है, सजदा करना नमाज की मेराज है। अब इबादत, ये जो इबादत है इसकी भी एक मेराज है, इसकी भी एक मेराज है। वो मेराज क्या है? वो मेराज इंतहा ये है कि जो खिलकत के मकसद का आगाज हुआ था पहली सांस से मोहब्बत अली का, आखिरी सांस तक मोहब्बत अली में, तो अब अल्लाह इनाम से नवाज रहा है। अब अल्लाह मेराज दे रहा है इस इबादत को। कैसे इबादत दे रहा है? ऐसे इबादत दे रहा है कि हमारी आखिरी सांस जिसके
मोहब्बत में ले रहे हैं, उसी का दीदार करके दुनिया से गुजर गए। और तफसील में नहीं जाना चाहता, अब इतना अर्ज करूं अज़ीज़ान गिरामी, इबादत करके इंसान आबिद हो सकता है। इबादत क्यों करता है इंसान? नमाज क्यों पढ़ता है, रोजे क्यों रखता है, हज क्यों करता है? ताकि आबिदीन में शुमार हो जाए। ताकि आबिदीन में शुमार हो जाए। इंसान इबादतें कर ले ला, उसका शुमार आबिदीन में होगा। आबिदीन में होना और है और किसी का ज़ैनुल आबिदीन होना और है। आबिदीन में होना और है, किसी का ज़ैनुल आबिदीन होना और है। रसूल अल्लाह से रिवायत है कि महशर में आवाज आएगी, ऐना ज़ैनुल आबिदीन, कहाँ है ज़ैनुल आबिदीन, कहाँ है इबादतों की जीनत। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जब ये मुनादी निदा करेगा तो मेरा एक बेटा, मेरा एक फर्जंद अली इब्न अल हुसैन सफों को चीरता हुआ आ गया है, वो है ज़ैनुल आबिदीन। सजदे करके इंसान साजिदीन में हो सकता है, मगर एक ही है जो सैयदुस साजिदीन है। अज़ीज़ान गिरामी, नाम अली, लक़ब ज़ैनुल आबिदीन, सैयद सज्जाद, वो इमाम से मंसूब दिन आने वाला दिन, आज मखसूस दिन उसी इमाम से मंसूब है ना। बेशुमार फज़ाइल है मेरे, बेशुमार अज़मत है मेरी मौला, मगर मसाइल भी इतने ज्यादा हैं कि अल्लाह। एक जुमला अर्ज करके आगे बढ़ूं। जहां जाकिर ने जिक्र किया, आपने गिरिया भी किया, इस पर भी कुछ ना दिल में नहीं के असर हुआ। खंजर से काटने लगा मजलूम का गला। ये जिक्र हमने सुना है हर बार। पूरी कायनात का आज तक का, क़यामत तक का, पूरी कायनात का अगर कोई सबसे बड़ा पुरदर्द लम्हा है तो यही है, असर आशूरा। और इसी लम्हे के साथ सैयद सज्जाद की इमामत का आगाज हो रहा है। अजीब कर्ब के आलम, कैसे आगाज हो रहा है मेरे मौला का। मैं अक्सर कहता हूँ इमाम की इमामत का आगाज एक सलाम के साथ है। इमामत का आगाज, चौथे इमाम की इमामत का आगाज एक सलाम के साथ। वो सलाम इमाम ने किया, वो सलाम क्या है? अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हम ये सलाम करते हैं करबला की तरफ देखते हैं, मगर मेरे मौला ने ये सलाम किया, अपनी इमामत का आगाज हो रहा है। ये सलाम किया तो क्या देख के सलाम किया? की बुलंदी पर बाप का टका हुआ किसी किसी को बना रहा है। अल्लाह अपने वारिसों का सर नेज़े पे देख के सलाम किया, करबला से शाम तक वारिसों का सर देखते रहे, करबला से शाम तक अजीब गम उठाते रहे। कुफा और शाम के रास्ते में एक चाहने वाला मिल गया, पहचान होगी, तड़प गया, मौला आप कहा मौला ये मंजर आपका देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? आपके जंजीरों में जकड़ा गया है।
कहा मौला कोई खिदमत हो तो बयान कीजिए। इमाम ने कहा तेरे पास कुछ पैसे हैं? कहा मेरे पास है मौला, आप खिदमत के लिए हुक्म दीजिए। कहा एक काम कर, वो पैसे आगे जो सिपाही हैं उन सिपाहियों को दे दे। तो मौला कौन से सिपाही? कहा जिनके हाथों में भी मेरे वारिसों के सर हैं, उनको पैसे दे दे और उनसे कहना पैसे की लालच देकर कि वो थोड़ा आगे बढ़ जाए। बोला इसका सबब आगे बढ़ने के लिए कहा मेरे दिल का दर्द कौन जाने, उनसे कह के आगे बढ़ जाएं, इसीलिए कि लोग सरों को देखने आते हैं ना अल्लाहु अकबर। 48 साल बाद करबला जिंदा रहा मेरा मौला। 38 साल 38 ईयर्स 40 साल के करीब। मगर अजीजाने गिरामी, जब इंसान के बदन पे कोई जख्म लगता है ना, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने बहुत हो गया, तो जख्म भर जाते हैं, दर्द कम हो जाता है, वक्त के साथ जख्म, जिस्मानी जख्म भर जाते हैं। मगर सज्जाद वो इमाम है 38 साल तक आखिरी सांस तक। सज्जाद वो गरीब का नाम है, न दिल के जख्म भरे न जिस्म के जख्म भरे। तो इमाम की शहादत के बाद हुआ। खुदा लानत करे अब्दुल मलिक पर, खुदा लानत करे वली आते अब्दुल मलिक। मेरे इमाम को जहर दे दिया गया। करबला पर होने वाला दुनिया से गुजर गया रो रो। आखिरी सांसों में भी करबला के मनाजिर को याद करके रो रहे थे। 5वें इमाम यतीम हुए, सर से बाप का साया उठ गया, कयामत हो गई। गुस्ल कफन का एहतमाम, अब 5वें इमाम पर कयामत। ये मेरे मौला ने सहहा बुलंद किया। मैं इस बात की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। अक्सर सहहा कहते हैं चीख मार के रोना। चीख मार के रोने को सहहा कहते हैं। या तो अली ने सहहा बुलंद किया था या सैयद सज्जाद बुलंद कर रहे हैं। मासूम इमाम सहहा बुलंद करके रोना है। जाने वालों ने पूछा मौला सहहा बुलंद करने का मतलब? मेरे बाबा जब भी रोए करबला पर रोए, अशाम अशाम कह के रोए, हाय मेरा गरीब बाबा, कभी अपनी मुसीबत नहीं बताई। क्या मौला कौन सी मुसीबत? क्या मेरे बाबा के बदन पर आज भी कुछ निशान ताजा है। सिर्फ निशान ताजा नहीं है, बल्कि जो मिकदार तौक मेरे दादा के पहनाई गई थी 38 साल पहले, जो तौक मेरे दादा को पहनाई गई थी, उस तौक का असर इतना ताजा है कि मेरे बाबा के गले की हड्डियां नजर आ रही है। मेरे बाबा के बदन के निशान कैसे बाकी रहे? ये कौन से निशान थे जो बाकी रहे? अरबाब अज़ा, ये वो इमाम है ना जिसे जंजीरें पहनाई गई थी, लोहे की आहनी जंजीरें थी ना। होता ये था कि आहनी जंजीरों में पकड़ा हुआ मेरा मौला जब करबला से शाम चलता था, तो जब धूप होती थी
खुदा इस इबादत को कबूल फरमा। कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। कायनात में जहाँ जहाँ मोमिनीन बसते हैं सबके जहाँ माल इज्जत आबरू ईमान का तहफ्फुज़ फरमा। हम सबको मकामात मुक़द्दसा हज ज़ियारत और बिलखुसूस जिस इमाम का जिक्र है उस इमाम की शिकस्ता कब्र खुदाया हम सबको इमाम के तामीर शुदा रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमा। मुंतकिम करबला इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको सरकार के नासिरों में शुमार। शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का वो मंजर नैसे पसरे सरवर मखना बेचा दे बलवे में फूकी मादे और मजमे कुफार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, कोठों पर तमाशाई, बाजार की ज़ेबाई कोठों पर तमाशाई, यादा की सफाराई और आलम तन्हाई हो बेकसूला आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, दरबार की ज़ेबाई कोठों पर तमाशाई, दरबार की ज़ेबाई कोठों पर तमाशाई, यादा की सफाराई और आलम तन्हाई वो बेकसूला चार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, दरबार में सरवरिया आते हैं हरम गिरिया, दरबार में सरवरिया आते हैं हरम गिरिया, उठने लगा एक तूफान महशर का महताबा, जुम्बिश में है दरबार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, गरीब बेकसूला चार मर गया, आग उड़ाएंगे सरदार मर गया, आग उड़ाएंगे सरदार मर गया, सारा राह सरों पर नाचो इमाम का, सारा राह सरों पर नाचो इमाम का, ज़हरा की जाओ हुसैन का दिलदार मर गया, ज़हरा की जाओ हुसैन का दिलदार मर गया, गरीब बेकसूला चार मर गया, सादात आग उड़ाएंगे सरदार मर गया, कांटों पर जिसे राहे शाम में
घाटों पर से आए सामने वो सार बने बेकार बन गया, वो सार बने बेकार बन गया। गरीब का सोना चार मर गया, उड़ाएंगे सरदार मर गया। जिंदा के दर पे है खड़ी अब्बास सकीना, अब्बास सकीना, अब्बास सकीना। जिंदा के दर पे है खड़ी अब्बास सकीना, अब्बास सकीना, अब्बास सकीना, अब्बास सकीना। मशको अलम के साथ रहा प्यास का साया, मुझको के साथ रहा प्यास का साया। पानी के लिए खून के दरिया में नहाया, पानी के लिए खून के दरिया में नहाया। अब भूल चुकी अपनी पिए प्यास सकीना, जिंदा के दर पे है खड़ी अब्बास सकीना, अब्बास सकीना। अब साथ कहाँ होंगे फिर अब्बास सकीना, अब साथ कहाँ होंगे फिर अब्बास सकीना। एक मुझको सताता है ये एहसास सकीना, एक मुझको सताता है ये एहसास सकीना। आईना तुझे जिंदगी राज सकीना, सकीना, अब्बास
लश्कर के अलमदार नजर आते नहीं है, लश्कर के अलमदार नजर आते नहीं है, अब जीने के आसार नजर आते नहीं है, अब जीने के आसार नजर आते नहीं है। आ जाएगी अब्बास तेरे सकीना, सकीना अब्बास सकीना, जिंदा के दर पे है खड़ी अब्बास सकीना, अब्बास सकीना। जंगल में लुटी कुल जला शाम गरीबा, जंगल में लुटी कुर्ता जला शाम गरीबा, दरबार गई सा मेरे हाल मेरी जान, दरबार गई सा मेरे हाल मेरी जान। देखो खैयात हुई अब आस सकीना, सकीना अब आस सकीना, जिंदा के दर पे है खड़ी अब आस सकीना। जंजीर पाए आपके लोहा सुना रही है, जंजीर पाए आबिद लोहा सुना रही है, जंजीर पाए आपके लोहा सुना रही है, जंजीर पाए आबिद लोहा सुना रही है, बीमार पे यतीमी आंसू बहा रही है, जंजीर पाए आबिद लोहा सुना रही है, बीमार पे
है सब जमाना ऐसे तलाश किया है हर काम पर मुसीबत हर काम पर मुसीबत बिछा रहे हैं जंजीर पाए आबिद रहे हैं जंजीर पाए आबिद सुना रहे हैं जिंदान में दहन के तुरबा जना रहे हैं खाने हुए जिगर को कैया दिखा रहे हैं दर्द अलम का मंजर हर दो अलम का मंजर दिखा रहे हैं जंजीर पाए आबिद नौहा सुना रहे हैं पाँव में आगे है गर्दन में तोख भारी आँखों में अश्क गम है जख्मों से वो है जारी है देख फौज आता कैदी को फौज आदा लगा रहे हैं जंजीर पाए आबिद नौहा सुना रहे हैं पानी में हमारे दादा कांटों पर चल रहे हैं आंसू गमों अलम के सांचे में भर रहे हैं कंदील जिंदगी के कंदील जिंदगी के जला रहे हैं जंजीर पाए आबिद नौहा सुना रहे हैं सेवक सलाम आपया फतम देरा सेवक सलाम आपया फतम देरा हम आगे पे सीख लिए फतम देरा सलवत सलाम आपे फातिमा ज़हरा सलवत सलाम आपे फातिमा ज़हरा हमारे पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा ताकत से सकीना के उतार दे दो है ताकत से सकीना के उतार दे दो है ज़हर से बिछी गिरता फतम देरा सलवत सलाम आपे फातिमा ज़हरा सलवत सलाम आपे फातिमा ज़हरा हमारे पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा बेट बनाए जोर बदे जख्म कर दिया बेट बनाए जोर बदे जख्म कर दिया सच्चा का ये जुल्म किया फतम ज़हरा सलवत सलाम आपे फातिमा ज़हरा सलवत सलाम आपे फातिमा ज़हरा हमारे पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा और बाजुल शुगत से वकी अलमदार हाय 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 अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह अस्सलाम वालेकुम या फातिमा ज़हरा अस्सलाम वालेकुम या गरीबुल गुरबा अस्सलाम वीडियो में देखो पूरा या अली ज़हरा अस्सलाम वालेकुम या